discuss one more topic, and the topic for the day is about data management and data management system and MySQL. This is common for class 12 computer science and informatic practices. The weightage for exam for computer science it is 10 marks, and for IP means informatic practices it is 30 marks. और उम्मीद है कि आपका एग्जाम नजदीक आ गया और आप इसके लिए तैयार होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, और इस टॉपिक को हमने बड़े ध्यान से करना है क्योंकि प्रैक्टिकल सेशन भी इसमें आपका साथ में रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। चलिए आज शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया है कि ये जो टॉपिक है आपका ये 30 मार्क्स का है इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के लिए और 10 मार्क्स का है कंप्यूटर साइंस के लिए। दोनों में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड एसक्यूएल। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे डाटाबेस से। डाटाबेस होता क्या है? ए डाटाबेस इज एन well organized collection of interrelated data that ensure safety, security and integrity of data, which is called a database. Means we can say that database जो है हमारा एक interrelated tables का या relation का एक collection होगा जो हमें provide करेगा security और integrity of data। और जो database है it will work like a container in which we can contain any object. It may be a table, it may be a query, or we can also generate a report and also apply different type of procedure to organize the data which is available in the table. Now what is DBMS? ये हमने पढ़ लिया कि database क्या है। हमारा database हमारा एक related tables का एक collections है। यदि हम बात करें डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या? दैट इज ए काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर टूल which provide the essential service. Essential service means how we can create the database, how we can store the data, how we can maintain the data, and how we can utilize that database in an efficient way. Database also provide security tool that ensure the safe accessibility of the data. Dear students, जैसे आपने देखा है कि हमारे बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनके अंदर जो डाटा होता है, जो वॉल्यूम ऑफ डाटा होता है वो हमारा वेरी हाई होता है, और उस हाई वॉल्यूम को हमने डाटा को मैनेज करना होता है, और हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए उस डाटा का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो उस डाटा को सबसे पहले स्टोर करने के लिए हम वहां पे एक रिलेशन बनाएंगे। वी कैन क्रिएट ए टेबल or we can create the structure which is also known as schema of the table. Then we can also store that data, and we have also the requirement to maintain and utilize that database so that we can make a accurate decision based on that particular data. So a DBMS also provides security tool which ensure the safe accessibility of the data. Now question arises that what are the advantages why we use database? We have so many advantages of a database. First one is that it reduce data redundancy. कई बार क्या होता है हमारे पास डाटा बहुत ज्यादा होता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा हमारे पास है, और उस डाटा को हम चाहते हैं कि वहां पे हमारी कोई डुप्लीकेसी डाटा की ना हो। मींस कोई भी एक टपल जो आपका है वो टपल आपका दोबारा रिवाइज वहां पे ना हो, उसको हमने रिड्यूस करना है। तो वो रिड्यूस कौन करेगा? that will provide the facility by a database. Then we have control inconsistency और consistency, दो शब्द हमारे यहाँ पे होते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जिस पर्पज के लिए या जिस काम के लिए हमने डाटाबेस तैयार किया है वो रिजल्ट हमारा कंटिन्यूअसली एक एक्यूरेट मैनर में हमें प्रोवाइड करे। ये ना हो कि हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है या जो टेबल हमने बनाया है उसका हमारा जो वे था, जो हमारा टारगेट था, वो जो एम था वो हमारा कुछ था और डाटा हमें कुछ आंसर जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। डाटा हमें जो आउटपुट दे रहा है वो हमें डिफरेंट दे रहा है। मींस जो डाटाबेस होता है ये हमारे इस मेथड को ओवरकम करता है। मींस इट कंट्रोल द इनकंसिस्टेंसी ऑफ
database, it also facilitate sharing of data. Means database also provide the facility to share the data. Means if we have a data in a single file or in a single table or in a relation, we can share it with other user. Then we have enforced standard. Enforced standard का मतलब है कि जो हमारा database है, it adopt a particular standard which is adopted by the organization to control the data. And last advantage is that it provides the data security. Means the data which is stored in the database is secure for the user as well as for the organization. Then we have the level of database implementation. जो database होता है उसको जब हम implement करते हैं तो वो कितने level का होता है? जो data level of database implementation, we can also call it data abstraction. Data abstraction basically हमारा 3 प्रकार का होगा. एक हमारा internal level होता है, एक आपका conceptual level होता है और एक आपका external level होता है. External level जिसको आप view level भी कहते हो, ये हमारा वो client लेवल है जहां पे यूजर व्यू करेगा अपने डाटा को. सर्वर आपका जहां पे डाटा को हम आपका मैनेज करते हैं, और ये इंटरनल लेवल है, ये हमारा डिफाइन करेगा कि डाटा हमारा किस तरीके का है. ये तीनों लेवल मैंने यहाँ पे आपके शो किए हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. आप देख पा रहे होंगे आपके सामने 3 टेबल्स यहाँ पे दी गई है. ये जो मेरा लेवल है जहां पे मैंने डिफाइन किया है कि मेरा एक एट्रीब्यूट है आइटम नंबर, जिसका टाइप जो है आपका बाइट 6 है. दूसरा मेरा एट्रीब्यूट है नेम, जिसका आपका जो टाइप है वो आपका 20 है. इसी तरह से मेरा प्राइस और रीऑर्डर क्वांटिटी, ये मेरे पास 4 एट्रीब्यूट्स है जिनका मैंने स्ट्रक्चर या आप कह सकते हो डाटा टाइप मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है. और वहां पे जो आपका इंडेंटेशन है, जो हमारा व्यू है डाटा का, वो आपका वहां पे प्रेजेंट किया है. ये हमारा बिल्कुल इंटरनल व्यू होता है. इसके बाद हमारा होगा कंसेप्चुअल लेवल. कंसेप्चुअल लेवल के अंदर जितने भी हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, या आप कह सकते हो अपनी टेबल की जो स्कीमा होती है उसको हम डिफाइन करेंगे. यहाँ जैसे मैंने डिफाइन किया है कि मेरा एक एट्रीब्यूट है आइटम नंबर, जिसका जो साइज मैंने दिया है वो आपका 6 का दिया है, 6 बाइट का दिया है, और यहाँ पे ये मेरा कैरेक्टर टाइप होगा. आइटम नेम मेरा सेकंड एट्रीब्यूट है, जिसका मेरा साइज 20 बाइट है और टाइप मेरा कैरेक्टर है. इसके बाद प्राइस है और रीऑर्डर क्वांटिटी. यदि मैं टॉप लेवल जो हमारा व्यू लेवल है, या जिसको आप एक्सटर्नल लेवल भी कह सकते हो, यहाँ पे जो हमारा एक मान लो यूजर है सेल्स ऑफिसर और एक आपका है परचेज ऑफिसर, वो अपने व्यू कर रहा है डाटा को. क्या व्यू कर रहा है? उसको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एक आइटम नेम है और एक आपका प्राइस है. यदि हम व्यू 2 में जाते हैं तो यहाँ पे आइटम नेम तो वही है, आइटम नेम तो इसके पास भी है, बट इसका जो व्यू है वो हमारा रीऑर्डर क्वांटिटी. मींस यहाँ पे जो लेवल है, इस लेवल पे यूजर जो है हमारा काम करेगा, जो एंड यूजर है वो हमारा इंटरेक्ट होगा विद दिस व्यू. देन वी हैव डाटा इंडिपेंडेंस. डाटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? हर कोई चाहता है कि जब वो काम करे तो वो फ्री हो, कोई दूसरा उसके ऊपर डिपेंड ना करे, बल्कि वो अपना फ्री होके फ्री माइंड से काम करे. तो वैसे ही हमारा जो डाटाबेस होता है, डाटाबेस में जैसे मैंने आपको बताया कि वी हैव 3 व्यू. 3 व्यू कौन कौन से थे हमारे? एक हमारा इंटरनल व्यू, एक हमारा कॉन्सेप्चुअल व्यू और एक आपका एक्सटर्नल व्यू. अब यहाँ पे इसके अंदर जो डाटा हमारा होता है, वो डाटा की जो इंडिपेंडेंसी है वो हमारी 2 प्रकार की होती है. एक होती है हमारी फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी और दूसरी होती है हमारी लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी. अब फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी का मतलब क्या है कि इट प्रोवाइड द एबिलिटी टू मॉडिफाई द स्कीम फॉलोड एट द फिजिकल लेवल विदाउट अफेक्टिंग द स्कीम फॉलोड एट ए कॉन्सेप्चुअल लेवल. यानी कि यहाँ पे हम इस लेवल के अंदर, जो मेरा ये लेवल है, इस लेवल में हम कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, कुछ ना कुछ बदलाव यहाँ पे करेंगे, बट जो यहाँ बदलाव करेंगे वो बदलाव हमारे इस लेवल को, कॉन्सेप्चुअल लेवल को इफेक्ट नहीं करेगा. ये होता है हमारा फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस. और यदि हम लॉजिकल की बात करें तो लॉजिकल में क्या है, कॉन्सेप्चुअल लेवल में कोई भी चेंज होगा बट इट डजंट अफेक्ट द टॉप लेवल, और वी कैन से व्यू लेवल. अब इसके बाद इनके एबिलिटी टू मॉडिफाई द स्कीम, यानी स्कीम को हमने मॉडिफाई करना है, इन स्ट्रक्चर को हमने मॉडिफाई करना है. कहाँ पे? कॉन्सेप्चुअल लेवल विदाउट अफेक्टिंग द स्कीम फॉलोड एट ए व्यू लेवल. ये चीजें आपने दोनों देखनी है.
इसके बाद हमारा आता है डाटा मॉडल। डाटा मॉडल का मतलब क्या है? डाटा मॉडल का मतलब है कि जो डाटा आपने स्टोर किया है अपने डाटाबेस के अंदर, उस डाटा को हमने किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। हाउ डाटा आर ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टोर्ड इन द डाटाबेस। यदि हम ये देखते हैं कि जो डाटा हमारा है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज है या किस तरीके से स्टोर है, तो उसको बोलेंगे हम डाटा मॉडल। और डाटा मॉडल बेसिकली आपका 3 प्रकार का होगा। इसमें एक होता है हमारा रिलेशनल डाटा मॉडल, दूसरा होगा रिलेशन, जिसको हम टेबल भी कह सकते हैं। टेबल जो आपकी होती है, टेबल को हम रिलेशन भी कह सकते हैं। और रिलेशनल डाटाबेस के अंदर जो आपका डाटा होगा वो आपका रो, सेकंड आपका होता है नेटवर्क डाटा मॉडल, और तीसरा आपका है हायरार्चिकल डाटा मॉडल। और यहाँ पे यदि हम इनको डीपली या विद एग्जांपल देखें तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास है रिलेशनल डाटा मॉडल। रिलेशनल डाटा मॉडल होगा क्या? जैसे मैंने अभी आपको बताया भी, डाटा जो होगा दैट विल बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू टेबल्स। डाटा हमारा टेबल में ऑर्गेनाइज होगा 1 by 1। और ये जो टर्मिनोलॉजी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। रिलेशनल डाटा मॉडल जो है आपका, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय EF कोड इन 1970। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आप स्क्रीन के ऊपर, यहाँ मेरे पास एक टेबल तो ये है और एक टेबल मेरे पास ये है। 2 टेबल मैंने ली है और दोनों टेबल में यदि आप देखोगे तो फर्स्ट टेबल के अंदर मेरा स्टूडेंट आईडी है, सेकंड में नेम है और तीसरे में मेरा एज है। इसके बाद एक टेबल और है जिसमें मेरे पास सब्जेक्ट आईडी है, फिर मेरे पास नेम है और फिर मेरे पास टीचर है। उसके बाद यदि हम तीसरी टेबल को देखते हैं तो तीसरी टेबल में मैंने क्या किया, इस टेबल के अंदर से एक एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पे ले लिया जो आपका है स्टूडेंट आईडी। और ये जो सेकंड टेबल है, सेकंड टेबल के अंदर से मैंने लिया है सब्जेक्ट आईडी और एक तीसरा एट्रीब्यूट यहाँ पे रख दिया मार्क्स। अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि डाटाबेस क्या है, डाटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड फाइल्स और टेबल्स। अब यहाँ पे ये जो टेबल है, दिस इज रिलेटेड ऑन दिस वन एंड दिस वन। अब यहाँ पे कह रहा है कि रिलेशन यहाँ पे जो मेरा बना है वो रिलेशन किसका है? ये रिलेशन है मेरी टेबल्स का। अब यहाँ पे सेकंड जो मेरा मॉडल है वो है नेटवर्क डाटा मॉडल। और नेटवर्क जो डाटा मॉडल है ये काम करता है हमारा मैनी टू मैनी एंटिटी के ऊपर। मैनी टू मैनी का मतलब क्या है कि हमारे पास कई सारे डिपेंडेंसी दूसरे के ऊपर होंगे। जैसे सपोज करो कि मेरे पास कई सारे स्कूल है और कई सारे स्कूलों में, या आप सिंपल ले लीजिए कि एक स्कूल है आपका, एक स्कूल के अंदर हमारे कई सारी क्लासेस है और कई सारी क्लासेस के अंदर कई सारे बच्चे हैं। यानी कि कई सारी क्लासेस मींस many classes we have and many students we have. If we have the relation between many to many, means where data are represented by collection of records and relations among data। यानी कि जो आपका रिलेशनशिप होगा वो आपका डाटा के बीच में होगा और वो जो आपका रिलेशनशिप होगा वो रिकॉर्ड और रिलेशन दोनों के बीच में आपका बनेगा और इनका ये आपका एक कलेक्शन होगा। कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड आर कनेक्टेड टू वन अनदर बाय मींस ऑफ ए लिंक। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक रिकॉर्ड है ए का जो है दैट इज रिलेटेड टू B1 एंड B2, देन अगेन B1 इज related to C1 and C2, where B2 concerned with C2 and C3। और यदि यहाँ पे देखेंगे तो C2 है that is also related with B1 और B2। Then we have hierarchical data model. In hierarchical data model, records are organized as tree rather than arbitrary graph। यहाँ पे जो हमारा रिकॉर्ड होगा वो ट्री के मोड में आपका ऑर्गेनाइज होगा और यहाँ पे जो रिलेशनशिप हमारा होगा दैट इज 1 to many। बच्चों ये आपने ध्यान रखना है 1 to many। जैसे आप देख पा रहे हैं कि मेरे यहाँ पे एक कॉलेज है, इस कॉलेज के अंदर आपके 2 डिपार्टमेंट, एक तो डिपार्टमेंट है आपका और एक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। यदि आप डिपार्टमेंट के अंदर देख रहे हैं तो डिपार्टमेंट के अंदर हमारे कई सारे कोर्सेज हैं, यहाँ पे कई सारे टीचर्स है और कई सारे हमारे स्टूडेंट्स है। मींस वी हैव वन डिपार्टमेंट बट मैनी कोर्सेज, वी हैव वन डिपार्टमेंट बट मैनी टीचिंग फैकल्टीज।
We have a single department but have many students. This is known as hierarchical data model, or we can say that one to many relations. After that, we have some database terminology. Dear students, ये हमारा एक वो छोटी सी टेबल है जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं आपको इन सभी टर्मिनोलॉजी को जो आपकी डाटाबेस के अंदर आती है उनको वन बाय वन करके आपको डिफाइन करूंगा। अब यहाँ पे देखोगे तो मेरे पास यहाँ पे एक टेबल है, ये वाली, इसमें आप देख पा रहे हैं, जिसके अंदर मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है सीरियल नंबर, यहाँ लिखा है मेरा एस नेम, यहाँ है एफ नेम मीन्स फादर नेम, क्लास और एडमिशन नंबर, जिसके अंदर मेरे पास यहाँ रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड ये है, एक रिकॉर्ड ये है, एक रिकॉर्ड ये है और एक रिकॉर्ड मेरा ये है। अब यहाँ पे यदि आप ऊपर देखोगे तो टर्मिनोलॉजी में मैंने क्या क्या दिया है, मैंने डिफाइन किया है रिलेशन, एक होता है डोमेन, एक होता है टपल, एक होगा आपका एट्रीब्यूट, एक होगी डिग्री और एक होगा आपका कार्डिनलिटी। और बेटा यहाँ से जो क्वेश्चन है वो हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम आएगा। हाँ, यहाँ पे पजल कहाँ होगी, कहाँ पे आपको दिक्कत आती है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमारा यहाँ पे आया है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, अभी मैंने आपको पहले बता दिया कि रिलेशन हमारा जो टेबल आपकी होती है, टेबल को आप रिलेशन भी कह सकते हो। मीन्स ए टेबल इन ए डाटाबेस इज नोन एज रिलेशन, यानी कि एक टेबल जो आपकी है वो आपका रिलेशन होगा। इसके बाद है हमारा डोमेन। डोमेन क्या होता है, डोमेन इज ए पूल ऑफ वैल्यूज। पूल ऑफ वैल्यू मतलब एक हमारा वैल्यूज का एक कलेक्शन होगा। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक पूल ऑफ वैल्यूज है जिसमें मैंने लिया है 101, 102, 103, 104, और मैंने इन सभी वैल्यूज को यहाँ वन बाय वन, जो सीरियल नंबर था, इन वैल्यूज को यहाँ वन बाय वन जो है अपनी टेबल के अंदर मैं लेके आया हूँ। यदि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये मेरी वैल्यू यहाँ पे आ रही है, यस, ये देखिए। अब यहाँ पे इस डोमेन के अंदर से सारी मेरी वैल्यू जो है यहाँ पे आई है। जो हमारा ये पूल ऑफ वैल्यूज है, दिस इज नोन एज डोमेन। देन वी हैव टपल। अब जो आपकी ये टेबल है, इस टेबल के अंदर यहाँ हमने देखा कि 102 जो है दिस इज द सीरियल नंबर, श्याम इज द नेम ऑफ ए स्टूडेंट, संतलाल इज नेम ऑफ फादर नेम ऑफ सन श्याम, एंड his class is 12th and the admission number for Shyam is 2212। मीन्स यहाँ से यदि हम इस पूरे एक रिकॉर्ड को देख लें, यदि यानी कि यदि इस रो जो हमारी ये बनी है पूरी और इस रो में जो मैंने रिकॉर्ड डाला है, ये पूरा जो रिकॉर्ड है दैट इज नोन एज टपल। मीन्स इसको आप रिकॉर्ड भी कह सकते हो, इसको आप टपल भी कह सकते हो। इसके बाद वी हैव एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है, जो आपकी टेबल होगी, जो आपका रिलेशन होगा, उसके अंदर जो भी आप अपने एट्रीब्यूट, अपने फील्ड डिफाइन करोगे, ये वाले जो फील्ड आपने डिफाइन किए हैं, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, क्लास, एडमिशन नंबर, ये आपके कहलाएंगे एट्रीब्यूट। यानी कि मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है इस डायग्राम से, यानी कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो ये आपका है, ये आपका है एट्रीब्यूट। इनको आप फील्ड भी कह सकते हो, दिस इज आल्सो नोन एज फील्ड। अब यहां से हमारा एक क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेंगे कि भाई एट्रीब्यूट क्या होते हैं या टपल क्या होते हैं, लेकिन थोड़ा घुमा के क्वेश्चन ले लेते हैं। वो पूछते हैं व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस टेबल और व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ दिस टेबल। अब डिग्री क्या होती है, नंबर ऑफ कॉलम इन ए टेबल। मीन्स यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, मेरे यहाँ पे जो कॉलम्स है, एक कॉलम तो ये है सीरियल नंबर, एक मेरा है स्टूडेंट नेम, एक है फादर नेम, एक है क्लास और एक है एडमिशन नंबर। यदि यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे पास 5 कॉलम है। 5 कॉलम यदि यहाँ पे है तो इसका मतलब क्या है कि मेरी टेबल की जो डिग्री है वो 5 है। मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स और फील्ड, नंबर ऑफ कॉलम और एट्रीब्यूट और फील्ड इन ए टेबल इज नोन एज डिग्री ऑफ द टेबल। ध्यान रखना, CD मीन्स आपके एक याददाश्त लगा देता हूं,
CD, C स्टैंड फॉर कॉलम। कॉलम जो होंगे हमारे वो क्या कहलाएंगे? टू टेबल। अब यहाँ पे जो हमारी ये टेबल है, जैसे इस टेबल के अंदर मेरे पास 3 एट्रीब्यूट है, एक एम्प्लॉय आईडी है, एक फर्स्ट नेम है, एक लास्ट नेम। यदि आप यहाँ पे देखोगे तो ये तीनों मेरे एट्रीब्यूट है और मैं चाहता हूं कि इस टेबल के अंदर कोई भी, जैसे हमने पढ़ा था कि जो डाटाबेस है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इट रिड्यूस को डुप्लीकेट होने से रोकेगा। मींस इट डजंट accept the duplicate value in that particular column। अभी हम इनको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास जो टेबल दिखाई दे रही है, जो आपको स्लाइड आपके सामने है, उसके अंदर मैंने बताया भी जो की है हमारी, बेसिकली की आपकी 4 प्रकार की आएगी आपके सिलेबस के हिसाब से। तो यहाँ पे आपके पास जो की है, एक तो है आपका प्राइमरी की, दूसरा है आपका कैंडिडेट की, और तीसरा आपका लिया है मैंने सुपर की, और चौथी आपकी है फॉरेन की। अब इनको हम किस तरीके से समझेंगे? प्राइमरी की क्या है? प्राइमरी की हमारा एक वो की एट्रीब्यूट होता है जो आपकी डुप्लीकेसी को रिड्यूस करेगा आपके टेबल के अंदर, और किसी भी एक टेबल के अंदर सिर्फ एक प्राइमरी की हम यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सपोज करो कि मेरे पास एक टेबल है एम्प्लॉय, उसके अंदर मेरे पास 6 कॉलम है, 6 एट्रीब्यूट मेरे यहाँ पे है, या आप कह सकते हो कि उस टेबल की जो डिग्री है वो 6 है, और इसमें मैंने एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, एसएस नंबर, यहाँ पे ये मैंने 6 एट्रीब्यूट जो है वो डिफाइन किए। अब मैंने अपनी टेबल के अंदर से जो डुप्लीकेसी है उसको मैंने रिमूव करना है, यानी कि वहां पे हमारा कोई भी रिकॉर्ड आपका डुप्लीकेट ना हो। तो मैं क्या करूंगा, इस एक एट्रीब्यूट को मैंने आपका एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की डिफाइन कर दिया। अब यदि मैंने एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की डिफाइन कर दिया है, तो यदि जो एम्प्लॉय आईडी में एक कैंडिडेट को दे दूंगा, एक एम्प्लॉय को दे दूंगा, तो वही प्राइमरी की मैं दूसरे को नहीं दे सकता। यदि मैं ऐसा करूंगा तो मेरा जो डाटाबेस है वो वहां पे एरर शो कर देगा, वहां पे मेरे को बता देगा कि दैट पर्टिकुलर आईडी इज आल्सो प्रोवाइडेड टू अदर कैंडिडेट, सो इट इज नॉट अलाउड टू यूज। इसके बाद है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की जिसको हम अल्टरनेट की भी कह सकते हैं। अब यदि आप यहाँ इस टेबल के अंदर देखोगे, मैंने आपको बताया कि आपकी जो प्राइमरी की है वो हमारे रिकॉर्ड को डुप्लीकेट होने से रोकेगी, या आप कह सकते हो कि उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो आपकी यूनिक होगी। अब यूनिक वहां पे यदि है तो अब इसके अंदर यदि हम देख पा रहे हैं कि टेबल के अंदर आपके पास जो एम्प्लॉय आईडी थी जिसको हमने प्राइमरी की ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था, इसके बाद कुछ ऐसे एट्रीब्यूट और थे जिनको हम प्राइमरी की डिफाइन कर सकते थे, बट क्योंकि ड्यू टू द कंडीशन दैट इन ए सिंगल टेबल we can define only a single key, primary key, so we have also the option for passport number to define it as a primary key. We have also the option to define license number as a primary key, and we have also the option of SSN as a primary key. बट यहाँ पे क्योंकि हमने प्राइमरी की एक ही डिफाइन करनी थी और इन की को हम डिफाइन कर सकते थे लेकिन हमने डिफाइन नहीं किया, तो ये जो हमारी कीज बच गई जिनको हम डिफाइन कर सकते थे लेकिन डिफाइन नहीं किया, दिस इज नोन एज कैंडिडेट और अल्टरनेट की। तीसरा मेरे यहाँ पे है सुपर की। सुपर की में क्या होता है बेटा, जैसे आपकी कोई टेबल है, सपोज करो कि उस टेबल के अंदर कोई भी ऐसा कॉलम नहीं है जिसको हम प्राइमरी की डिफाइन कर सकते थे, लेकिन प्राइमरी की हम, क्योंकि जो डाटाबेस होता है उसका हमारा मेन फीचर होता है कि इट रिड्यूस द रिडंडेंसी, तो हम क्या करेंगे, हम किन्हीं भी 2 कॉलम को कॉन्कैटिनेट करेंगे, किन्हीं भी 2 कॉलम को जोड़ेंगे और उन दोनों को जोड़ के एक प्राइमरी की हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो हमारी की बनेगी 2 एट्रीब्यूट को जोड़ने से, दैट इज नोन एज सुपर की। इसके बाद है हमारा फॉर्म की। फॉर्म की का मतलब क्या होता है, suppose I have 2 table, first table is employee and second one is department।
यहाँ इस एम्प्लॉय के अंदर मैंने जो डिपार्टमेंट आईडी थी, इस डिपार्टमेंट आईडी को प्राइमरी की डिफाइन कर दिया। सपोज आई हैव डिफाइंड डिपार्टमेंट आईडी एज ए प्राइमरी की, देन इन द टेबल डिपार्टमेंट, the department ID means which is the primary key of table employee as abstracted in table department. Now the primary key of table employee is known as foreign key in table department. यानी कि एक टेबल की प्राइमरी की किसी भी दूसरी टेबल के अंदर जाके फॉरेन की आपकी कहलाएगी। ये आपका यहाँ पे कीज का कंसेप्ट। लेकिन यहाँ पे छोटा क्वेश्चन हमारा बन जाता है। क्वेश्चन क्या है, एक हमारी होती है यूनिक की और एक होती है हमारी प्राइमरी की। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं बेटा कि प्राइमरी की हमारी वो की होती है जो हमारे रिकॉर्ड को डुप्लीकेट नहीं होने देगी, इनके डुप्लीकेट वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगी। और दूसरा ये होगा कि वो हमारा कॉलम ब्लैंक भी नहीं होगा, मींस वी मस्ट हैव एनी वैल्यू इन दैट पर्टिकुलर कॉलम, मींस इट कैन नॉट रिमेन नल, वो खाली नहीं रहेगा। But on the other hand, in unique की वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होगी, बट हमारा कोई ना कोई एक एट्रीब्यूट, एक टपल जो है हमारा, एक रिकॉर्ड जो है वो हमारा खाली हो सकता है, लेकिन वो भी हमारा मतलब खाली हो सकता है लेकिन डुप्लीकेट नहीं होगा। अब यदि हमारी बात आती है, क्वेश्चन क्या जाता है कि व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक की। अब दोनों में सिमिलरिटी तो ये है कि दोनों वैल्यू डुप्लीकेट वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगी। डिफरेंस की यदि बात आती है तो डिफरेंस ये है कि जो प्राइमरी की है उसमें वैल्यू हमारी नल नहीं हो सकती, जबकि यूनिक के अंदर वैल्यू हमारी नल हो सकती है। इसके बाद हमारे रिलेशनल अलजेब्रा है। रिलेशनल अलजेब्रा इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, बट कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा ये कंसेप्ट में आपका है। रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है? रिलेशनल अलजेब्रा इज ए प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि जो हम क्वेरी लैंग्वेज करेंगे उसका एक प्रोसीजर है जो आपकी टेबल के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। और इस रिलेशनल अलजेब्रा को यूज करके वी कैन गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। इट गिव ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू ऑब्टेन द रिजल्ट ऑफ द क्वेरी। इट यूजेस ऑपरेटर टू परफॉर्म क्वेरीज। अब रिलेशनल अलजेब्रा की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास होता है सेलेक्ट, दूसरा है प्रोजेक्ट, तीसरा है यूनियन, सेट इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, नेचुरल ज्वाइन और डिवीजन। आईपी स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्टूडेंट्स यहाँ कुछ क्वेश्चंस हमारे यहाँ से भी बनेंगे जो हम आगे करेंगे हमारा इक्वल ज्वाइन वगैरह के लिए, वो हम प्रैक्टिकल सेशन के अंदर साथ साथ में इनको रिपीट करते रहेंगे। क्योंकि हमारा ये रिवीजन टूर है इसलिए हमने थोड़ा सा टाइम बाउंड हमारे पास है, तो हमें थोड़ा जल्दी इसको करना है। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है? इट इज ए डाटाबेस क्वेरी लैंग्वेज used for storing and managing data in relational database management system. SQL was the first commercial language which was introduced by EF Codes relational model of database and used to perform all type of data operation in RDBMS. RDBMS stand for Relational Database Management System. यानी कि EF कोड का जो रिलेशनल मॉडल था डाटाबेस का, उसके लिए आपकी परफॉर्म की गई थी। अब यदि हम बात करें कैपेबिलिटीज क्या क्या है एसक्यूएल की, कैपेबिलिटीज के लिए हम बात करें तो एसक्यूएल के अंदर सबसे पहले भी है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसको आप डिटेल बोलते हो। दीज आर द कमांड व्हिच कैन बी यूज्ड टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। यानी कि जो हमारे टेबल बनेगी, जो रिलेशन आपका बनेगा, उस रिलेशन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए वी विल यूज DDL, data definition language. We have manipulation language, which is also known TML. This is the kind of commands in SQL which can be used to interact with the table, or we can get the data in the desired format. Then we have embedded data manipulation language. Embed होता है जोड़ना, यानी कि data manipulation language को यूज करना है हमने, and we will have different tables to embed. Then we have view definition, authorization, integrity and transaction control. ट्रांजैक्शन कंट्रोल में इंटीग्रिटी में क्या होगा, हम टेबल्स को इंटीग्रेट करेंगे, जोड़ेंगे। अथोराइजेशन विच इज बेस्ड ऑन द वी कैन से दैट बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर कंडीशन फुल द
that condition will be fulfilled and then it will be authorized. Then we have transaction control. ट्रांजेक्शन कंट्रोल का मतलब होता है कि जो डाटाबेस आपका होता है, उस डाटाबेस की जो एक्सेस होती है वो हमारी डिफरेंट टाइप की हो सकती है। एक तो ये हो सकता है कि डाटाबेस के अंदर किसी को मान लो सिर्फ डाटा को व्यू करने की परमिशन है, मान लो किसी को डाटाबेस के अंदर आपका वर्क करने की परमिशन है, और मान लो कि एक हमारा ऐसा यूजर है जिसके पास सारे राइट्स है कि वो डाटा का व्यू भी कर सकता है, डाटा का वो मॉडिफाई भी कर सकता है और उसके अंदर नया डाटा भी आपका ऐड कर सकता है। तो ये जो ऑपरेशन हो गए, दिस इज नोन एज ट्रांजैक्शन कंट्रोल। नाउ वी हैव एसक्यूएल प्रोसेसिंग। एसक्यूएल के अंदर जब प्रोसेसिंग हम करेंगे तो बेसिकली हम कमांड मोड में करते हैं। वैसे हमारे पास ग्राफिकल मोड भी आपका अवेलेबल है, बट most of the time we will use different kind of commands or syntax to use the database. For the same, we will use different type of commands which is categorized under 4 subcategory, that is DDL, DML, DCL, TCL. DDL stand for data definition language, DML data manipulation language, DCL data control language, TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अब कई बार आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि आप 3 कम से कम DDL लैंग्वेज, इनके व्हाट इज DDL लैंग्वेज, गिव 3 एग्जांपल, गिव 2 एग्जांपल। यानी कि आपने DDL कमांड के बारे में बताना कि DDL कमांड क्या होती है या DDL क्या होता है, और उसकी आपने कोई ना कोई 2 या 3 एग्जांपल्स आपने वहां पे देने होते हैं। तो DDL क्या है? DDL stand for data definition language which facilitate defining, creation, modification, etc. of database object such as table and index, etc. These command are alter and draw. यानी कि आपकी टेबल है, उस टेबल के अंदर यदि आपने अपने डाटाबेस को, अपने डाटा को डिफाइन करना है, तो उस डाटा को डिफाइन करने के लिए वी कैन यूज क्रिएट टेबल। अब यहाँ पे हम धीरे धीरे इन सभी कमांड्स को करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे अपने प्रैक्टिकल सेशन के अंदर। देन वी हैव DML. DML स्टैंड फॉर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज विच फैसिलिटेट मैनिपुलेशन ऑफ स्टोर्ड रिकॉर्ड लाइक रिट्राइवल, एडिशन, डिलीशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल्स और रिलेशन। सम कमांड्स आर सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट। देन वी हैव DCL, जो आपके सिलेबस में नहीं है बट आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ। DCL is the kind of command which can be used to control access to the database. जैसे मैंने आपको बताया कि आपके यूजर्स को, डिफरेंट यूजर को आपने डिफरेंट एक्सेस जो है वो प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं आपके डाटाबेस एक्सेस को। इसके बाद यदि हम आगे बात करें, देन वी हैव TCL में जो आपके आएगी कमिट और रोल बैक। ये हमारी काफी इंपॉर्टेंट कमांड है, और जो आपका क्लास 12th IP सेक्शन है उसके अंदर हमारी मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये आपकी 5 कमांड यहाँ पे दी गई है, इनके अंदर से आपका मोस्टली क्वेश्चन बनता है, जिसमें आपका ग्रांट है, रिवोक है, कमिट है, रोल बैक है, सेव पॉइंट है। चलिए अब हम इन सभी कमांड्स को 1 बाय 1 करेंगे, लेकिन इस किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर बनाने से पहले सबसे पहले हमारा जो स्कीमा तैयार होता है, उस स्कीमा के लिए हम यूज करते हैं डाटा टाइप। मींस व्हेन वी हैव the requirement to define the structure of a table, at the same time we will define different type of columns or attribute of the table, and to define the column or attribute we have the requirement to define its data type, जो हमें बताएगा कि जो कॉलम आपका है वो कॉलम आपकी किस प्रकार की वैल्यू को होल्ड करेगा। अब जैसे मेरे पास यदि मैं देखूं तो SQL डाटा टाइप के अंदर बेसिकली हमारे 5 प्रकार का डाटा टाइप होता है, जिसमें आपका एक होता है बाइनरी डाटा टाइप, एक होता है न्यूमेरिक डाटा टाइप, एक आपका आएगा एक्सट्रैक्ट न्यूमेरिक डाटा टाइप, एक आएगा आपका स्ट्रिंग डाटा टाइप, और एक आएगा आपका डेट डाटा टाइप। लेकिन यदि हम बात करें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आपके सिलेबस में बेसिकली 3 ही डाटा टाइप मेन रहेंगे, एक आपका न्यूमेरिक, एक आपका स्ट्रिंग और एक आपका डेट। सबसे पहले हमारे पास है न्यूमेरिक डाटा टाइप। न्यूमेरिक डाटा टाइप को बेसिकली हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा इंट, जिसका साइज हमारा 11 बाइट होगा। एक होगा हमारा स्मॉल इंट, जिसका साइज आपका 5 बाइट होगा। देन वी हैव बीट, देन वी हैव डेसिमल एंड वी हैव न्यूमेरिक।
इसके बाद हमारा फ्लोट और रियल। फ्लोट और रियल के अंदर क्या है, हमारे पास यदि नंबर आपका फ्रैक्शन में है, दशमलव में यदि है, देन वी यूज फ्लोट और रियल। देन वी हैव स्ट्रिंग डाटा टाइप, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द टेबल क्रिएशन और रिलेशन क्रिएशन। अब इसके अंदर हमारे पास दो तरह का डाटा टाइप या तीन तरह का डाटा टाइप हम यूज करते हैं। एक होता है हमारा कैरेक्टर, जिसका फिक्स साइज होता है, और ये जो फिक्स साइज है इट इज 255 फीट। वेर करेक्टर के अंदर जो साइज है हमारा वो फिक्स नहीं होगा, बल्कि ये हमारा वेरिएबल होगा, और इसका साइज भी हमारा मैक्सिमम जो है वो 255 बिट होगा। देन वी हैव टेक्स्ट, जिसके अंदर आपका कोई भी टेक्स्ट जो है वो साइज हो सकता है। देन वी हैव डेट। डेट में बेटा आप ध्यान रखेंगे कि जो आपका फॉर्मेट होगा एसक्यूएल के अंदर, जो फॉर्मेट आपका होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वाई 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 वाई। वाई वाई स्टैंड फॉर means the year will be in 4 digit like 2020 2020, so means y y y and y। इसके बाद हमारा होता है मंथ, एम एम। एम एम का मतलब है मीन्स फर्स्ट मंथ यदि आपका है, पहला महीना यदि आपका है, तो देन यू विल राइट डाउन 01। एस एस स्टैंड फॉर सेकंड, यानी कि जो टाइम आपका होगा, टाइम आपका आवर्स, मिनट और सेकंड्स में होगा। देन वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल व्हिच वी कैन यूज ऑन द डाटाबेस। अब कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट्स एंश्योर डाटाबेस इंटीग्रिटी। जो डाटाबेस आपका होगा उसकी जो इंटीग्रिटी है, उस इंटीग्रिटी को एंश्योर करेंगे, उसकी सिक्योरिटी को आपका एंश्योर करेंगे। सो आल्सो कॉल्ड डाटाबेस इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। इसलिए इनको हम इन डाटाबेस इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स भी कह सकते हैं, जो आपके बेसिकली चार होंगे। एक आपका यूनिक होगा, एक आपका प्राइमरी की होगा, एक नोट नल होगा, और एक आपका चेक होगा। वैसे हम यार यहाँ पे कंस्ट्रेंट जो है वो आपका डिफॉल्ट है, जिसको हम अभी यूज करेंगे, वो भी आपका यहाँ पे रहेगा डिफॉल्ट। तो इन सभी को हम वन बाय वन आपका जो है वो डिफाइन करें। अब इसके बाद आपका है डिफरेंट काइंड ऑफ कमांड्स विच वी कैन यूज इन डाटाबेस। और ये हमारी वो कमांड है जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी को अब हम वन बाय वन जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। अब जैसे ये आपका कमांड है, तो यहाँ पे जब आप जाओगे तो इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके चलता हूँ आपके लिए। जस्ट ये आपकी कमांड है, और इसको हम यहाँ अपने सेक्शन में, क्योंकि साइड में रहे आपको दिखती भी रहे थोड़ा, तो इसलिए मैं इनको पैरेलल आपके लेके चलूंगा। सबसे पहले यहाँ पे हमारा है हाउ वी कैन क्रिएट ए डाटाबेस। डाटाबेस हमने क्रिएट करना है। जब भी आपने MySQL के अंदर डाटाबेस क्रिएट करना होता है तो हमारे पास कमांड होती है क्रिएट डाटाबेस। आप लिखोगे, उसके बाद उस डाटाबेस का नाम आप डिफाइन कर दोगे। मान लो मैंने यहाँ पे डाटाबेस का नाम दे दिया NIO। इसके बाद मैं सेमीकोलन लगाऊंगा। ध्यान रखें कि इन MySQL एवरी स्टेटमेंट आर टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन। यानी सेमीकोलन यदि आपके पास होगा, आप सेमीकोलन जब आप लगा दोगे, इसका मतलब क्या है कि जो स्टेटमेंट आपकी SQL की है विल बी कंप्लीट। अब यहाँ पे मैंने लिखा क्रिएट डाटाबेस NIOS। इसके बाद मैंने इंटरप्रेस कर दिया। जैसे ही मैं इंटरप्रेस करूंगा तो यहाँ पे मैसेज मेरे पास है क्वेरी ओके, वन रो अफेक्टेड एंड इट विल टेक्स 0.28 सेकेंड। अब यहाँ पे हमारा एक डाटाबेस तैयार हो गया है जिसका नाम है NIOS। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पे डाटाबेस जो है वो कौन कौन से है, हाउ मेनी डाटाबेसेस आर देयर इन MySQL इन दिस लैंग्वेज। सो फॉर द सेम क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आ जाता है कई बार कि हाउ वी कैन शो द लिस्ट ऑफ डाटाबेसेस। आप अपने डाटाबेस की लिस्ट को कैसे देख सकते हो।
ये क्वेश्चन हमारा वहां पे बन जाता है। तो यदि आपने डाटाबेस की लिस्ट को देखना होता है तो हम लिखेंगे शो डाटाबेसेस, सेमीकोलन लगाएंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि मेरे पास जो डाटाबेसेस है वो हमारे इतने डाटाबेस आपके सामने दिए हुए हैं। और वो डाटाबेस कौन कौन से है? एक है हमारा इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा, एक है माई एसक्यूएल, एक हमने अभी बनाया है आपका NIOS, इसके बाद है हमारा परफॉर्मेंस अंडरस्कोर स्कीमा, देन वी हैव स्कीला, सन्नी, SYS, वर्ड। ये हमारे पास डाटाबेसेस ऑलरेडी बने हुए हैं। डाटाबेस हमारा ठीक उसी तरीके से होता है जैसे हमारा विंडोज के अंदर फोल्डर होता है। अब जब भी आपने कोई भी टेबल आपकी क्रिएट करनी होती है तो टेबल को क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज अ डाटाबेस। और डाटाबेस यूज करने के लिए हमें क्या है, सबसे पहले लिखेंगे हम यूज, उसके बाद हमारा डाटाबेस। जो भी आपने नाम देना है उस डाटाबेस का नाम आप दे दोगे। मान लो मेरे पास, मैं चाहता हूं कि मैंने जो स्कीला डाटाबेस है या जो सनी डाटाबेस है या जो मेरा NIOS है उसको मैंने यूज करना है, तो मैं लिखूंगा यूज NIOS, सेमीकोलन लगाऊंगा, एंटर प्रेस कर दूंगा। तो मेरा मैसेज यहाँ पे आया है डाटाबेस चेंज्ड, मींस अब यहाँ पे मेरा जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो गया है और अब मैं जो भी वर्क करूंगा वो सारा वर्क मेरा होगा NIOS फोल्डर के अंदर या NIOS डाटाबेस के अंदर। अब मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करनी है। टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं अपनी कमांड लिखूंगा और हमारी वो कमांड जो मैंने अभी आपको बताया था कि DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, उसके अंदर सबसे पहले जो हमारी कमांड है वो होती है आपकी क्रिएट टेबल। तो मैं लिखूंगा क्रिएट, जो भी आपने टेबल बनानी है उस टेबल का आप नाम ले लीजिए। मैंने मान लो यहाँ पे एक टेबल बना दी आपकी NVS के नाम से मैंने टेबल बनाया है, एंटर प्रेस मैंने किया। अब यहाँ पे आप देखिएगा मैंने सेमीकोलन यूज नहीं किया बेटा। सेमीकोलन क्यों नहीं किया यूज? क्योंकि मेरी स्टेटमेंट अभी ये कंप्लीट नहीं है, अभी हमारी स्टेटमेंट अधूरी है। इसके साथ मेरी सेकंड जो सब कमांड है वो भी जुड़ी हुई है। अब क्रिएट टेबल NVS, अब इसके अंदर जो भी आपने एट्रीब्यूट बनाने हैं वो आप एट्रीब्यूट यहाँ पे बना सकते हैं। और ये एट्रीब्यूट बनाने के लिए मान लो मैंने सबसे पहले लिया आपका सीरियल नंबर, इसके बाद उसका डाटा टाइप जो हमने अभी आपको बताए थे, यहाँ पे आप इंटीजर भी कर सकते हो और यदि चाहो तो इंट भी आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो। इसके बाद अगला कॉलम जब आप बनाओगे देन इट विल बी सेपरेटेड बाय कोमा। डियर स्टूडेंट्स, आईपी के एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन आता है, सिचुएशन दी जाती है आपके पास, जैसे दे देंगे भाई आपके टेबल है इस नाम की और इसमें ये आपके एट्रीब्यूट्स है, ये इसका डाटा टाइप है और ये आपकी प्राइमरी की वहां पे है। तो इनको यूज करके आप एक टेबल क्रिएट कैसे करोगे, राइट डाउन द सिंटैक्स, वो आपने लिखना होता है। वही मैं अब आपको करवा रहा हूँ। क्रिएट टेबल NVS मैंने किया, सीरियल नंबर इंट, इसके बाद मैंने एक एट्रीब्यूट ले लिया आपका S नेम मींस स्टूडेंट नेम, जिसका टाइप मैंने लिया मान लो वेर कैरेक्टर और मैंने वो ले लिया आपका 25 कैरेक्टर। इसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया आपका F नेम और इसके बाद उसका भी मैंने उसका डाटा टाइप डिफाइन किया वेर कैरेक्टर। उसके बाद उसका साइज मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। फिर मैंने यहाँ पे एक कॉलम लिया एडमिशन नंबर जिसको हमारा इंटीजर टाइप है और मैं चाहता हूँ कि इसको मैंने प्राइमरी की डिफाइन करना है, PRIMARY प्राइमरी की मैंने डिफाइन करना है। तो मैं वहां पे प्राइमरी की उसको डिफाइन करूंगा और उसके बाद वहां पे सेमीकोलन मैं अपना सेमीकोलन लगाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं जो ब्रैकेट मैंने यहाँ से शुरू किया था यहाँ से, इसको मैं यहाँ बंद कर देता हूँ, फिर सेमीकोलन लगाऊंगा और मैं एंटर प्रेस यहाँ पे कर दूंगा। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मेरी यहाँ पे एक टेबल तैयार हो जाएगी, एक टेबल मेरी बन जाएगी क्योंकि मैसेज यहाँ पे आ गया क्वेरी ओके। इसका मतलब क्या है कि मेरी जो एक टेबल है, टेबल कौन सी बनी है, मेरी टेबल बनी है NVS के नाम से, जिसके अंदर मेरे कॉलम जो होंगे वो सीरियल नंबर होगा, S नेम होगा, F नेम होगा, एडमिशन नंबर होगा जो मेरी प्राइमरी। अब मैं देखना चाहता हूँ कि जो मेरी टेबल है ये टेबल का स्ट्रक्चर मेरा कैसे बना है, किस तरह से दिखाई देगी और इसके अंदर हमारे किस तरह के कंस्ट्रेंट्स आपके अप्लाई हुए हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा DESC लिख लीजिएगा या आप कंप्लीट लिख दीजिए डिस्क्राइब करके और टेबल का नाम आप दे दीजिएगा। जैसे ही आप नाम दोगे देन वी विल एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा टेबल का स्ट्रक्चर यहाँ पे आएगा।
अब ये बता रहा है कि जो ये फील्ड मेरे पास है वो आपका सीरियल नंबर है, एस नेम है, एफ नेम है और एडमिशन नंबर है। और ये मेरे डाटा टाइप है इंट वेर कैरेक्टर इंट, जो मैंने डिफाइन किया था। और यदि आप यहाँ पे देख रहे हो नल में यदि आप जाओगे तो ये भी यस है, ये भी यस है, ये भी यस है, लेकिन ये नो। अभी यस और नो का मीनिंग क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो सीरियल नंबर है, नेम है और फादर नेम है, इनकी वैल्यू को मैं ब्लैंक रख सकता हूँ, खाली रख सकता हूँ, मीन्स नल ये आपकी हो सकती है। बट क्योंकि मैंने ये प्राइमरी की थी, हालांकि मैंने इसको ये की क्वेश्चन यहाँ पर डिफाइन नहीं किया था, लेकिन उसके बाद भी ये हमारी नो आई है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो की डिफाइन की है वो मेरी की प्राइमरी है, और प्राइमरी की के अंदर हमारी कोई भी वैल्यू नल नहीं हो सकती। और यहाँ पे डिफॉल्ट हमारा क्या है, नल है, एक्सेट्रा में कुछ आपका डिफाइन नहीं किया। अब सपोज करो कि मैं चाहता हूं कि ये जो टेबल मैंने बनाई है, इस टेबल के अंदर मैंने एक फील्ड छोड़ दिया, वो फील्ड मेरे को ऐड करना था, लेकिन वो गलती से मेरा फील्ड रह गया है, और वो मान लो मेरा है डेट ऑफ एडमिशन। तो वो फील्ड ऐड करने के लिए मैं सिंपल लिखूंगा अल्टर टेबल। अल्टर जो हमारे इसकी सब कमांड तीन आएगी हमारी, एक ऐड होती है, एक मॉडिफाई होती है, एक ड्रॉप होती है। ऐड जो हमारा सब कमांड है उसके अंदर क्या होगा, आप अल्टर के साथ अपने उस टेबल के अंदर कोई भी नया कॉलम आपका ऐड कर सकते हो। मीन्स अल्टर टेबल, मैंने यहाँ पे लिया आपका ऐड, और यहाँ पे ले लिया डेट ऑफ एडमिशन, और इसका टाइप लिया मैंने डेट, सेमीकोलन लगाया और एंटर प्रेस कर दिया। सॉरी, यहाँ पे हमारा अल्टर टेबल, टेबल का नाम मैंने नहीं दिया, अल्टर टेबल। कौन सी टेबल? टेबल मैंने बनाई है एनवीएस के नाम से, अल्टर टेबल एनवीएस ऐड डेट ऑफ एडमिशन, और उसका टाइप मैंने दे दिया डेट। तो यहाँ पे जो आप देखोगे तो आपकी एक टेबल जो है वो आपकी मीन्स आपकी इस टेबल के अंदर, जहां पे ऑलरेडी मेरे पास सिर्फ 4 कॉलम थे, 4 एट्रीब्यूट मेरे थे, अब 5वां एट्रीब्यूट और मेरा यहाँ पे ऐड हो गया है। अब मैं यदि इस टेबल को दोबारा देखूंगा तो यहाँ पे मेरे को दिखा दे, ये मेरा एक नया कॉलम यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पे जो ये आपका है डेट, ये आपका यहाँ पे आ गया है। अब इसके बाद होता है हमारा मॉडिफाई। सपोज करो कि मैं चाहता था कि जो मेरा फादर नेम है, फादर नेम का जो साइज है वो मैंने 20 दिया है, बट इसका साइज हमारे पास जो नेम आ रहे हैं उनका साइज कुछ ज्यादा था, तो मैं यहाँ पे इस अल्टर के साथ कुछ भी मॉडिफिकेशन आपका कर सकता हूँ। अल्टर टेबल, जो आपकी टेबल है उसका नाम आप दोगे अल्टर टेबल एनवीएस, देन जहां हमने ऐड लिखा था सिर्फ ऐड की बजाय क्या कर दोगे, मॉडिफाई करोगे। उसके बाद जो आपका एट्रीब्यूट है जिसको आपने मॉडिफाई करना है उसका नाम दोगे, देन जो आपने डाटा टाइप यहाँ पे चाहिए है, जो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे 20 था उसको मैं कर रहा हूँ 30। और सपोज करो कि आप इसके साथ कोई आपकी यदि कोई चाहते हो कि मैंने की भी डिफाइन करनी है तो वो की भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। चलिए आगे हम करेंगे। इसके बाद हमने इसको सेमीकोलन लगाया और एंटर प्रेस हमने कर दिया। जब हम एंटर प्रेस करेंगे और यदि यहाँ पे आप दोबारा देखेंगे तो इसका जो साइज है वो हमारा 20 की बजाय 30 हो जाएगा। अगेन वी विल ट्राई द सेम। देखिए, सॉरी एस नेम सॉरी एस नेम, यहाँ पे हमने क्योंकि एस नेम को किया था तो एस नेम का जो साइज पहले 25 था वो हमारा साइज 30 आपका हो गया है। इसके बाद होता है हमारा ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब होता है कि आपकी इस टेबल के अंदर कोई एक ऐसा कॉलम था जो हमें नहीं चाहिए था, लेकिन उसको हमने ले लिया है और उस कॉलम को हम यहाँ से हटाना चाहते हैं। देन वी विल जस्ट राइट डाउन अल्टर टेबल, उसके बाद टेबल का नाम, फिर आप लिखोगे ड्रॉप, और ड्रॉप के बाद जो भी आपका एट्रीब्यूट है जिसको भी आपने हटाना है उसका आप नाम दे दोगे। मान लो मैं चाहता हूँ कि एडमिशन नंबर, हालांकि एडमिशन नंबर हमारा प्राइमरी की था लेकिन उसको भी मैंने हटाना तो मैं हटा सकता हूँ। तो यहाँ पे एडमिशन नंबर यहाँ से लिखो, इसके बाद आप सेमीकोलन लगाओ और आप एंटर प्रेस कर दो। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपका जो कॉलम है वहां से वो हट जाएगा। मीन्स यहाँ पे अब क्या हो गया, हमने जो अभी आपको बताया था कि हमारे पास जो डीडीएल है, डीडीएल में बेसिकली हमारी 4 कमांड हम यूज करते हैं, क्रिएट, अल्टर, फिर हमारे अल्टर में हमारा ऐड है, मॉडिफाई है और उसके बाद आपका ड्रॉप है। ये तीनों हमने यहाँ पे यूज किया है। अब इसके बाद यदि आप देखते हो तो आगे हमारे पास जो है
वो है हमारा इंसर्ट इनटू। यानी कि इंसर्ट हमारा कमांड होता है यदि आप चाहते हो कि जो टेबल आपने बनाया है उस टेबल के अंदर मेरे को कोई वैल्यू एंटर करनी है। वैल्यू एंटर करनी है तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि आप सबसे पहले उसके अंदर जो वैल्यूज आप दोगे, सबसे पहले आप लिखोगे इंसर्ट इनटू, insert into, then write down the name of the table, then press enter. After that we will just start the brackets and provide the value as per the columns or field which we have already provided. अब यहाँ पे यदि आप देख पा रहे हैं कि जो वैल्यूज जो टाइप मैंने दिए है, इंट दिया है, वेरी कैरेक्टर दिया है और इंट और डेट दिया है। ध्यान रखेंगे आप लोग कि यदि वैल्यू हमारी इंटीजर है तो उस वैल्यू को हमने कॉलम के अंदर या स्ट्रिंग के अंदर देने की जरूरत नहीं होती, उसको हम सिंपल डिफाइन कर देंगे। जैसे मेरे को सीरियल नंबर चाहिए है तो मैंने यहाँ पे सिंपल डिफाइन कर दिया, इसके आगे पीछे मैंने कोई स्ट्रिंग आपका यूज नहीं किया है। इसके बाद यदि मेरे पास वेर कैरेक्टर है या मेरा डेट है तो फिर मेरे को जरूरत पड़ेगी कि उनको मैं स्ट्रिंग के अंदर दूं। सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया आपका अभिषेक, यहाँ पे मैंने लिखा, इसके बाद मैंने जो भी लिखना है यहाँ पे फादर नेम है डाला यहाँ पे, तो मैंने अपना जो फादर नेम है वो यहाँ पे लिखा। इसके बाद एफ नेम, फिर मेरा इंटीजर आ गया है एडमिशन नंबर में, तो एडमिशन नंबर में मैंने आपका कोई भी नंबर जो है आपका वो एंटर कर दिया। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे डेट ऑफ एडमिशन में मैंने जो डाटा टाइप दिया है वो डेट दिया है। अब यदि आप यहाँ पे डिफाइन करते हो इस तरीके से डेट, तो आपकी एरर आएगी। आपने डिफाइन कैसे करना है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है डेट का वो हमारा होता है वाई 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 वाई, मंथ, एम एम और डी डी। यानी कि यहाँ पे आप अपनी वैल्यूज को डिफाइन करोगे। सपोज करो कि मैंने दे दिया यहाँ पे 2020 2 और 2, इसके बाद आप ब्रैकेट को बंद कर दोगे, सेमीकोलन लगाओगे। बट उससे पहले हमने यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो मैंने अभी छोड़ दिया था, सिर्फ आपको ये अलग से बताने के लिए। अब यहाँ पे जब तक आप वैल्यूज नहीं लिखोगे तब तक हमारी ये वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट नहीं होगी। तो मैंने लिखा इंसर्ट इनटू, इनटू किसके अंदर, देन यू विल राइट डाउन द नेम ऑफ द टेबल। और नेम ऑफ द टेबल जब आप करोगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको दिखाने के लिए मैं स्क्रीन थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, हो सकता है आपकी स्क्रीन कट रही हो वहां से, लेकिन अब आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे इंसर्ट इनटू एनवीएस, देन आई हैव राइट डाउन द वैल्यूज। अब मैं यहाँ पे जाके, और यहाँ पे भी मैंने सेमीकोलन आपका अभी यूज नहीं किया था, तो यहाँ पे भी मैं जो आपका सेमीकोलन है वो आपका यूज कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे क्योंकि जो डेट है आपकी वो सिंगल कोट में, सॉरी, कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट एट रो 1। अब यहाँ पे हमारी कोई ना कोई गलती यहाँ पे आई है, और गलती जो आपकी है वो आपकी रहेगी इंसर्ट इनटू एनवीएस वैल्यूज, VALUES, वैल्यूज इंट वेरी कैरेक्टर वेरी कैरेक्टर। अभी यहाँ पे हमारी कोई ना कोई गलती जो है वो आपकी रह गई है। क्या गलती है, वो आपकी यहाँ पे इंसर्ट इनटू एनवीएस, यहाँ पे गलती हमारी नहीं है। ये आ गई अभिषेक सुनील कुमार, ये आ गया आपका इंट एडमिशन नंबर, और इसके बाद 2200 वैल्यूज अभिषेक
just get it. Then we have the next value, and that is ent. Then we have m. Then we have the value 8. Yes. अब यहाँ पे हमने टेबल दूसरा लिया है, तो इस टेबल के अंदर मैंने पहले टेबल बनाया था आपको एग्जांपल देने के लिए। अभी नेक्स्ट हम करेंगे क्योंकि टाइम आपका थोड़ा सेव हो जाएगा, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहेगा। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू एंटर करी है, इंसर्ट इनटू डॉक्टर। देन वी हैव वैल्यूज, यहाँ पे हम सब कमांड लिखेंगे। उसके बाद जो टाइप है मेरा पहले इंट था, इसके बाद मेरा वेर करेक्टर है, फिर वेर करेक्टर है, फिर हमारा यहाँ पे करेक्टर मैंने लिया था, और यहाँ पे मेरा ये आपका इंट है। यहाँ पे वैल्यू मैंने जब इंसर्ट करी तो मेरी वैल्यू आपकी इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी। अब इस तरीके से कितने भी वैल्यूज आप अपने इंसर्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपने यहाँ पे लिखना है इंसर्ट इनटू, देन टेबल का नाम, इसके बाद यहाँ पे वैल्यूज में जाओगे और वैल्यूज के हिसाब से जो भी आपको वैल्यू डालनी है। बट ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जब आप टेबल के अंदर वैल्यू एंटर कर रहे हैं तो उस टाइम थोड़ा सा ये करें कि जो टेबल का स्ट्रक्चर है उसको आप डिस्प्ले कर लें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो टेबल आपकी है उस टेबल के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट हमने और किस टाइप के एट्रीब्यूट आपके डिफाइन किए हुए हैं। तो ये टेबल आपको ध्यान में आ जाएगी। इसके बाद हमारा आता है अपडेट वैल्यूज, मीन्स आपकी और मेरी वो वैल्यू है उसको मैंने चेंज करना है, तो आप वहां पे यूज करोगे हमारा अपडेट क्लास। तो उसके लिए हमारा सीधा है अपडेट, जो भी आपकी टेबल है उसका नाम आप वहां पे दे दोगे। मान लो आपकी टेबल है डॉक्टर, बट उससे पहले उस टेबल को हम देख लेते हैं पहले कौन सी वैल्यू हमने चेंज करनी है। तो मेरी यहाँ पे टेबल है, सपोज करो कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ये एक्सपीरियंस है इसको मेरा 6 की बजाय मैंने 10 करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अपडेट जो मेरी टेबल है इसको डॉक्टर सेट एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने जो चेंज करना है वो करना है एक्सपीरियंस को। इसका एक्सपीरियंस मेरे को करना है यहाँ पे 10। कहाँ करना है, मैं वो कंडीशन यहाँ पे दूंगा वेयर id इक्वल टू 101। मैंने यहाँ पे लिखा कि ये जो id जहाँ पे 101 है उसका जो एक्सपीरियंस पहले जो हमारा ये 6 है उसको चेंज करके कितना कर दे, 10 कर दे। तो मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाऊंगा और आपका एंटर प्रेस कर दूंगा। जब एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो हमारी क्वेरी है वो ओके हो गई है। और इसके चेंज देखने के लिए आप सिंपल आप जाओगे और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डॉक्टर कर दोगे, तो आप जब देखोगे तो यहाँ जो एक्सपीरियंस है वो मेरा 10 की बजाय 6 की बजाय 10 आपका हो गया है। अब इसके बाद होता है हमारा डिलीट क्वेरी। डिलीट करने के लिए आप चाहते हो कि किसी रिकॉर्ड को मैंने यहाँ से डिलीट करना है। सपोज करो कि मैं चाहता हूँ ये जो सोहन है इसको मेरे को डिलीट करना है 1 to 1 वाले को, तो मैं यहाँ पे सीधा लिखूंगा डिलीट फ्रॉम जो भी आपकी टेबल है डॉक्टर वेयर आईडी जो भी मेरी है, आईडी यहाँ पे कितना मेरा 1 to 1 है, मैंने दे दिया 1 to 1 सेमीकोलन डालूंगा और एंटर प्रेस यहाँ पे कर दूंगा। तो अब यदि आप देखोगे आपकी इस टेबल के अंदर जो डाटा आपका है वो आपका डिलीट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से जो 1 to 1 आईडी है वो आपकी यहाँ से चली गई है। इसके बाद हमारा होता है सिलेक्ट क्वेरी। सिलेक्ट क्वेरी के अंदर क्या है, हम अपनी टेबल के अंदर जो डाटा है उसको हम डिफरेंट फॉर्म में देख सकते हैं। जैसे अब ये टेबल है, यदि मैं यहाँ पे करता हूँ सिलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब है ऑल कॉलम्स विल बी देयर, ऑल रोज विल बी देयर, यानी कि सभी रो और कॉलम जो टेबल का है जो रिलेशन का है वो आपका वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा।
लेकिन यदि मैं चाहता हूं कि मेरे को यहाँ पे सिर्फ 2 कॉलम ही देखना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आई विल जस्ट राइट डाउन सेलेक्ट दोज कॉलम विच आई वांट टू डिस्प्ले, सेलेक्ट आईडी कॉमा डिपार्टमेंट from, then I will write down the name of the table, select ID comma department from doctor। यदि आप ये करो तो हमारे यहाँ पे जो ये व्यू है ये आपका सिर्फ और सिर्फ उन 2 कॉलम को दिखाएगा जो मैंने ऊपर वहां पे मेंशन किए हैं। इसके बाद हमारा है, यदि आप देख पा रहे हैं कि ऊपर वाली टेबल में पहले आईडी थी, उसके बाद डिपार्टमेंट था, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे को पहले डिपार्टमेंट देख चाहिए है और उसके बाद आईडी चाहिए है, तो मैं यहाँ पे जो ऑर्डर है मेरा वो उसको सिर्फ यहाँ चेंज कर दूंगा। यहाँ पहले जहां मैंने आईडी लिखा था, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट डाउन द डिपार्टमेंट, देन आईडी फ्रॉम डॉक्टर, then I will press the enter. Now you can see that department will be displayed, after then ID will be there। तो ये हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया है। इसके बाद होता है ड्रॉप क्वेरी। ड्रॉप क्वेरी में क्या है, ड्रॉप यदि आप यहाँ पे यूज करोगे तो ड्रॉप के अंदर जो आपकी टेबल है उस टेबल का स्ट्रक्चर भी और जो डाटा है वो भी हमारा सारा डिलीट हो जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है कि sometimes we have a question in the exam that what is the difference between delete and drop. The basic difference is that in the drop query all the structure and data of the table are deleted. On the other hand, in delete we can only delete the record based on the condition. So then we have again the next question, that is the टेम्परेरी रीनेमिंग कॉलम। कोई भी कॉलम आपका है उसको हमने रीनेम करना है, तो आप किसी कॉलम को रीनेम भी आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक कॉलम है सैलरी का और मैं चाहता हूँ कि मैंने उनका एवरेज जो है वो कैलकुलेट करना है। अब यदि एवरेज कैलकुलेट करना है तो मैं सिर्फ सिंपल लिखूंगा जैसे सैलरी इंटू 12 एज एनुअल सैलरी, मीन्स यहाँ पे एक मेरा नया टेम्परेरी कॉलम बन जाएगा एनुअल सैलरी के अंदर, जिसमें मेरी जो सैलरी है वो मेरी यहाँ पे निकल के आएगी। मीन्स यहाँ पे आ जाएगा आपका सैलरी इंटू 12, मीन्स जो आपकी सैलरी है उसको ये 12 से मल्टीप्लाई करेगा और एक नया कॉलम बनेगा एनुअल सैलरी के नाम से, उसको वो डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद हमारे यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं, लेकिन हमारा टाइम थोड़ा कम है तो इसलिए मैं थोड़ा आपको क्विकली करवा रहा हूँ, तो प्लीज लेट्स। अब यहाँ पे इसके बाद हमारा इंक्लूडिंग कैलकुलेटेड कॉलम इन द टेबल। भाई आपके पास कोई भी कॉलम है उसको आपने कैलकुलेट करना है तो आप वहां पे सिर्फ फार्मूला यूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे किया है कि मेरे पास सपोज एक टेबल है लोन, और उस लोन के अंदर मैंने एक लोन कैलकुलेट करना है, और करना कैसे है, रेट इंटू प्रिंसिपल। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये आपका ऑपरेटर यूज करूंगा और उसको आपका इंक्लूड कर दूंगा कैलकुलेशन के रूप में। देन वी हैव एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का मतलब क्या है कि ये टेबल मेरे पास है, सपोज मेरे पास ये यहाँ पे टेबल्स है और टेबल मान लो मेरी एक टेबल है एक्टर, इसी टेबल मैंने बनाई हुई है। यदि आप देखोगे, यदि आपने पूरी लिस्ट देखनी है टेबल्स की तो मैं जस्ट लिखूंगा सो टेबल्स, यहाँ पे लिखूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। सो वी हैव सो मेनी टेबल्स आर देयर। अब सपोज करो कि मेरे पास जो टेबल है एक्टर, उसके अंदर मैं डिस्प्ले करता हूँ हमारा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्टर, और जब मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूंगा तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे एक्टर्स यहाँ पे आ जाएंगे और सारा जो डाटा है वो आपका यहाँ पे डिस्प्ले होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे को जो रिकॉर्ड है वो इसके अंदर 200 रिकॉर्ड आपके हैं, लेकिन यदि आप यहाँ पे देखोगे तो आपका जो टेबल है इसके अंदर जो ऊपर कॉलम आपके हैं वो आपके हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और लास्ट अपडेट। अब इनमें से कोई नाम आपका यदि डुप्लीकेट आया हुआ है तो मैं चाहता हूं कि जो नाम है एक नाम सिर्फ एक बार में आए, तो मैं यहाँ पे आपका जो सिंटेक्स है वो यूज करूंगा डिस्टिंक्ट। जैसे मैं कैसे करूंगा बता देता हूं आपको, आप एक बार प्रैक्टिस करके देखें तो आपका इजीली वो हो जाएगा, बट ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम इसको मैं थोड़ा सा आपका स्लो उसमें कर रहा हूं। आपने करना है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, जो भी आपका है कॉलम उसको आप लिखोगे, और मैंने ले लिया यहाँ पे मान लो आपका लास्ट जो एट्रीब्यूट है वो देखना पड़ेगा एक बार मेरे को, लास्ट अंडरस्कोर नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम
फ्रॉम, जो भी आपके टेबल है उसको आप कर दोगे और एंटर प्रेस करोगे। तो वहां पे जो आप देख रहे थे आपके पास 200 रिकॉर्ड थे, बट व्हेन वी हैव यूज्ड डिस्टिंक्ट क्लास, नाउ वी हैव ओनली 1 to 1 रोज इन ए सेट। यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास बाकी जो नाम थे वो आपके वहां से हट गए हैं, यानी कि जो नाम डबल थे या ट्रिपल थे वो नाम आपके वहां से चले गए हैं। इसके बाद जब हम नेक्स्ट चलेंगे तो आपका यहीं पे जो टेबल आपका है वो आपका है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन में हम यूज कर सकते हैं कि हमने मान लो सिर्फ वो रिकॉर्ड देखने, जैसे हमने अभी किया है वेयर आईडी इक्वल टू, हमारा ऑपरेटर इक्वल टू यूज हो गया। देन वी हैव नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, वी कैन use with where condition. Then we have also range where we can use between and not between, inclusive also means दोनों को आपका इंक्लूड करेगा। कई बार क्वेश्चन आता है आपका भाई आपने वो रिकॉर्ड देखने हैं कि जिनकी जो ज्वाइनिंग है इस डेट के से और इस डेट के बीच में है, और क्वेश्चन साथ में दे देते हैं बोथ डेट आर इंक्लूसिव, तो वो चीज आपने देखना है। तो यहाँ पे जब इस तरह का कोई क्लास हमारे पास आता है देन वी यूज बिटवीन एंड नोट बिटवीन। जैसे मैंने यहाँ पे लिया कि मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट, मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज बिटवीन 15 एंड 20। भाई मैंने उन बच्चों के रिकॉर्ड देखने हैं जिनकी एज 15 और 20 के बीच में है। यहाँ मेरे को वो रिकॉर्ड भी दिखाएगा जिनकी एज 15 है और वो रिकॉर्ड भी दिखाएगा जिनकी एज 20 है। और देन वी हैव सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं वेयर एज नॉट बिटवीन 15 एंड 20, यानी कि 15 और 20 के बीच में इसकी एज नहीं है, वो मेरे को शो करवा दे। देन वी हैव लिस्ट। लिस्ट में मेरे पास क्या है, एक होता है मेरा इन और एक होता है नॉट इन। नॉट इन का मतलब क्या है कि यहाँ जो मेरे पास रिकॉर्ड आएगा वो मेरा दिखाएगा कि दैट डाटा इज अवेलेबल और नॉट अवेलेबल। अब ये मेरे को यहाँ दिखाना, जैसे मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे को जो मेरी टेबल है कस्टमर, उसके अंदर मेरे को दिखाए कि सिर्फ वो सिटी दिखाने हैं जहां पे सिटी मेरा क्या है, दिल्ली है, मुंबई है या चेन्नई है। या मैं देखना चाहता हूं दोज रिकॉर्ड वेयर सिटी इज नॉट दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई, वी कैन आल्सो गेट इट फ्रॉम देयर। आफ्टर दैट वी हैव सम न्यूमेरिक फंक्शंस। न्यूमेरिक फंक्शंस वी हैव पावर, राउंड, ट्रंकेट, साइन, एसक्यूआरटी एंड सो मेनी। अब आपने इन फंक्शंस को यूज करना है तो सिर्फ आपने सिंपल एक छोटा एक फंक्शन आपको यूज करके दिखा देता हूं मैं यहाँ पे। सेलेक्ट पाव, जो भी मेरे को चाहिए है 2,3 लिखूंगा और एंटर प्रेस में कर दूंगा। अब यहाँ पे देखोगे 2,3 का मतलब है 2 की पावर 3 मीन्स 2 दूनी 4 दूनी 8 मीन्स मेरे को यहाँ पे जो पावर है वो आपकी शो कर देगा। तो इस तरीके से हम किसी भी न्यूमेरिक फंक्शन को आपका यूज कर सकते हैं। देन वी हैव राउंड फंक्शन। राउंड में आपका है जैसे यहाँ पे दिया -1.23, -1 में लिया यानी कि एक डिजिट हमने यहाँ पे एक दशमलव तक लिया है, तो हमारा जो रिजल्ट है वो आपका राउंड, क्योंकि राउंड में क्या होता है सिंगल डिजिट आएगा वो डेसिमल वहां से हमारा रिमूव कर देगा। इसके बाद राउंड 1.52 बिकॉज इफ द वैल्यू इज मोर देन पॉइंट और ग्रेटर देन 5 then the value will be sealed. Then we have 1.298, यहाँ पे हमारा जीरो लिया हमने। जीरो का मतलब है सिर्फ 1 डेसिमल आपका यहाँ पे, ये हमारा विदाउट डेसिमल यहाँ पे आएगी, यानी कि 1 आपका निकल आएगा, अगले का कोई इम्पैक्ट आपका नहीं होगा। देन वी हैव राउंड आल्सो हियर। अब राउंड 1 यहाँ से हमारा क्वेश्चन मोस्टली बनता है बेटा, ये ध्यान रखेंगे आप। अब ये जैसे मेरे पास है, सपोज करो कि ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया एक, और यहां आप थोड़ा ध्यान दोगे, मैंने लिखा सेलेक्ट राउंड और यहां पे मेरे पास वैल्यू है ये वाली, और इसके बाद मैंने ले दिया -1। यदि -1 मैं यहां पे करता हूं तो जो वैल्यू मेरी है वो आएगी 2350। यदि मैं इसी को जहां मैंने -1 लिया है -2 यदि यहाँ पे करूंगा तो वैल्यू मेरी रहेगी 2300 मीन्स यहाँ पे सॉरी 2400, यानी कि जो लास्ट में, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे 5 था तो 5 होने की वजह से ये हमारी वैल्यू अब चली जाएगी। बट जो लास्ट 2 डिजिट यानी -2 किया है, -2 का मतलब है कि लास्ट की जो 2 डिजिट है इनको 00 कर देगा। यदि मैं -3 करूंगा
देन 2 के बाद आएगा 2000 मीन्स 2000 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये आपके मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। यानी कि -3 मैंने यहाँ पे किया तो लास्ट 3। अब यहाँ पे सपोज करो कि मेरे यहाँ पे जो है ये होता 2500, देन मेरी जो वैल्यू है वो आपकी आगे चली जाती 3000 पे। ये आपने ध्यान यहाँ पे रखना है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 5 कर दिया। अब 5 करूंगा तो वैल्यू मेरी जो है वो 3000 जाएगी 2000 की बजाय, ये वाली वैल्यू हमारे यहाँ पे आ जाएगी। ये आपने इसके अंदर ध्यान रखना है। इसके बाद हमारे पास जो आगे है वो आपका ट्रंकेट। ट्रंकेट के अंदर वैल्यू को हमने ट्रंकेट करना होता है, हमने ट्रिम करना होता है। ट्रंकेट क्या करेगा, द आर्गुमेंट टू स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यानी कि हमारे जैसे यहाँ पे था 7.29 और मैंने यहाँ पे 1 लिखा, तो ये 1 डेसिमल तक वैल्यू आपको देगा। 7.2 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। देन वी हैव साइन, ये बताएगा हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में। यदि हमारे पास नंबर पॉजिटिव होगा तो 1 आएगा और नेगेटिव यदि होगा तो -1 आएगा। देन वी हैव द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट। इफ वी वांट टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ ए गिवन वैल्यू देन वी कैन आल्सो कैलकुलेट द सेम। इसके बाद हमारा है इज नल और इज नॉट नल। मतलब क्या होता है कि आप चाहते हो कि आपने उस टेबल के अंदर से, आपके रिलेशन के अंदर से उन वैल्यूज को शो करना है जो आपकी क्या करेगी, जो आप जहां पे हमारा सिटी सपोज करो कि वो नल है तो इज नल। आपने वो रिकॉर्ड देखने हैं जो हमारे खाली नहीं है, मींस जहां पे सिटी हमारा भरा हुआ है, ऑलरेडी सिटी आपका डिफाइन है, तो वो रिकॉर्ड देखने तो मैं लिखूंगा सिटी इज नॉट नल। देन वी हैव कैरेक्टर पैटर्न। कैरेक्टर पैटर्न का मतलब है बेटा, मैं यदि आपको एग्जांपल करके दिखा देता हूं इसका, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे मोस्टली आ जाते हैं। सपोज कि मेरे यहाँ पे जो टेबल थी सिलेक्ट, मैंने जो लिया था वो मेरी वही है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्टर, और मैं देखना चाहता हूं कि मेरे को वो रिकॉर्ड देखने हैं जहां पे मेरा जो लास्ट नेम जो है, लास्ट नेम क्या है मेरा, इक्वल टू A%, सॉरी A%। A% का मतलब है कि मेरे को वो सारे रिकॉर्ड चाहिए है एक्टर के अंदर से जिनका जो लास्ट नेम A से शुरू हो रहा है बट बाद में कुछ भी है, स्टार्टिंग फ्रॉम A but having any character, then I will just write down the syntax. Sorry, oh sorry, single quote is there, I have the problem there, so I will just write down the single quote and single quote, then it will also display the same. So again, oh sorry, चलिए हम अभी करते हैं जैसे यहाँ पे हमारा वेयर नेम लाइक। अब यहाँ पे सिर्फ जो डबल कोट मैंने यहाँ लगा दिया, सिंगल कोट वहां पे होना था, तो ये हमारी इशू यहाँ पे आ गया था। चलो मैं एक बार और आपको करके दिखा देता हूँ, तो उसमें हम चलते हैं। मैंने डाटाबेस यूज किया है और यहाँ पे मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्टर वेयर लास्ट नेम इक्वल टू A%। अब यहाँ पे कोई भी हमारा ऐसा रिकॉर्ड वहां पे नहीं है कि जो आपका A से शुरू हो रहा है लास्ट नेम के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद आप कोई भी रिकॉर्ड अपने यहाँ पे देख सकते हो। सपोज करो कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मेरे को जो देखना है, मेरे को देखना भी जिसका लास्ट A है बट स्टार्टिंग हमारी किसी से भी है। लास्ट A यदि मेरा यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे इसको सिर्फ चेंज करूंगा, मैं आगे % लगा दूंगा। यदि आगे % मैंने लगाया है, इसका मीनिंग क्या है, आई वांट टू डिस्प्ले ऑल दोज रिकॉर्ड वेयर द लास्ट नेम having any character in the starting but at the end of that we have A, we will just write down and press the enter key. So we can show such file, select star from actor,
ये मेरी टेबल है। अब इसमें कोई नाम आपका ऐसा नहीं है। सपोज कि मेरे पास वाई है लास्ट नेम में, वो देखना चाह रहा हूं, तो वो मैं यहाँ पे आपको अभी एक बार दिखा देता हूँ, एक रिकॉर्ड निकाल के। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्टर, वेयर ई मैंने यहाँ पे लिया, और इसके बाद मैंने इसको सॉरी वेयर लास्ट नेम सॉरी जल्दबाजी में है ना सब कुछ। लाइक परसेंट ए। अब यहाँ पे ये 3 नाम आपके है, जिसमें लास्ट, यदि आप यहाँ पे कोई और रिकॉर्ड देना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे अपना देख सकते हो। ई वाले मैंने देखने हैं तो यहाँ पे ई मैंने लिखा है, और इसके बाद में यहाँ पे सिर्फ मेरे को लाइक यहाँ पे लिखना है। लाइक मीन्स ये मेरा सिंटेक्स यहाँ पे रहेगा, और ये रिकॉर्ड मेरे को दिखा देगा। मैं चाहता हूं कि मेरे को यहाँ पे वो रिकॉर्ड देखने हैं जो ए से शुरू हो रहे हैं और जिसके बाद 3 कैरेक्टर है। 3 कैरेक्टर का मतलब है आई विल जस्ट राइट डाउन 3 अंडरस्कोर, देन आई विल जस्ट गेट द प्रेस। लाइक कोई भी आपका यहाँ पे नाम नहीं, इस तरह का नहीं है, तो ये आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। मीन्स अंडरस्कोर जो है, एक अंडरस्कोर आपका रिप्रेजेंट करेगा एक कैरेक्टर को। इस तरह से हमारे कितने कैरेक्टर आपके वहां पे हो सकते हैं, वो आपने देखना है कि कितने मेरे यहाँ पे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो आपके इस तरह के है। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे लिया आपका, यही मैं यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे ई लिया मैंने, लेकिन इससे पहले मैंने ले लिया 1 2 3 4, 3 मैंने यहाँ पे लिया, और इसके बाद मैंने ए लिख दिया। तो यहाँ पे मेरे पास ये है कि लास्ट में जो है मेरा वो ई है, बट दे हैव ओनली 4 कैरेक्टर। ये आपने यहाँ पे देखना है, तो ये मेरे को यहाँ पे रिकॉर्ड इन्होंने दिखा दिया है। इसके बाद यदि आप आगे चलोगे तो ये हमारा है यहाँ पे एम, यानी कि एम है, आगे पीछे हमारा परसेंट है, उसके बाद ए है, अंडरस्कोर मीन्स ये क्या करेगा, मैचेस एनी स्ट्रिंग दैट इज एग्जैक्टली 3 कैरेक्टर लॉन्ग। ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद हमारे कुछ डेट टाइम के फंक्शंस है, जिसमें आप कोई भी आपका डेट टाइम जो है वो देख सकते हो। मान लो मैं चाहता हूं कि मेरे को अभी का टाइम देखना है, तो आई विल जस्ट राइट डाउन सेलेक्ट नाउ। ये मेरे को अभी टाइम जो है वो आपको दिखा देगा। इस तरीके से आप अपने कोई भी फंक्शन जो है वो आप यूज कर सकते हो। आप चाहते हो मेरे को यहाँ पे देखना है कि मेरा कौन सा मंथ यहाँ पे है, या मेरे को डे का नेम देखना है, तो आई विल जस्ट राइट डाउन सेलेक्ट डे नेम। आई विल जस्ट राइट डाउन एंड देन आई हैव selected day name select year means we will just write down like this one। सबसे पहले जब आप इस तरह के फंक्शन यूज करोगे, जैसे मैंने लिया आपका डे नेम, डे नेम के लिए क्या है, जो भी मेरे को लिखना है, मान लो मैं चाहता हूं कि जो मेरा करंट डेट है उस करंट डेट का मेरे को चाहिए, तो मैं यहाँ पे जो सिंटेक्स है मेरा डे नेम जैसे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आपका एक फंक्शन ले लिया भी जो मेरी करंट डेट है उस करंट डेट का मेरे को बता दे, तो वो मैं यहाँ पे करूंगा तो मेरा वो शो हो जाएगा, यानी कि करंट डेट जो आपकी है उसमें आपका ट्यूसडे। तो इस तरीके से आप सिंटेक्स देख सकते हो। यदि आपने ईयर देखना है, सपोज करो जैसे मैंने अभी किया था आपका सेलेक्ट ईयर, अब ईयर आपने देखना है तो यहाँ पे आपने पहले उसको डिफाइन करना पड़ेगा। मीन्स मैंने दे दिया 2020, इसके बाद 2, इसके बाद 3, ये मेरी डेट मैंने यहाँ पे डाली है। इसके बाद मैं देखना चाहता हूँ इसमें से मेरे को ईयर दिखा दे, देन इट विल सॉरी सेमीकोलन यदि मैं लगाऊंगा यहाँ पे तो मेरा जो ईयर है वो यहाँ पे आपका डिस्प्ले हो जाएगा। दिस विल आल्सो बी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन वी हैव कैरेक्टर स्ट्रिंग। कैरेक्टर स्ट्रिंग में आपके पास क्या है, आप अपने कैरेक्टर्स के जो आपका कोई भी कैरेक्टर है उसकी आप लेंथ चेक कर सकते हो। उसका आप मान लो कि मेरे पास एक कैरेक्टर है, एक छोटा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ बिकॉज टाइम हमारा ऑलरेडी ओवर हो चुका है।
थैंक्स टू नवीन सर हु इज गिविंग मच टाइम। सेलेक्ट, अब यहाँ पे जो भी मेरे को लेंथ चाहिए है उसका मैं यहाँ पे सिंटेक्स अपना लिखूंगा। सपोज मैंने लिख दिया इंफॉर्मेटिक्स और इसका मेरे को लेंथ चेक करना है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे आपका एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे को इसका जो लेंथ है वो आपको डिस्प्ले करवा देगा। इसके बाद यदि हम आगे चलते हैं तो ये क्वेश्चन यहाँ से हमारे जैसे आपका है भाई इन स्ट्रिंग है। इन स्ट्रिंग का मतलब है कि आपका कोई भी स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग के अंदर से मेरे को देखना है कि जैसे इंफॉर्मेटिक्स है, इसमें से जो मैट है वो हमारा कहाँ से है, कहाँ से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे हमारा आंसर आया 6, इसका मतलब क्या है 1 2 3 4 5 और ये हमारा 6। मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक एग्जांपल। सिर्फ सेलेक्ट यहाँ पे इन स्ट्रिंग, देन आई विल जस्ट राइट डाउन इंफॉर्मेटिक्स, देन MAT, ये मैं यहाँ पे लिखूंगा और एंटर प्रेस में कर दूंगा तो ये दिखाएगा मेरे को आंसर आपका यहाँ पे डिस्प्ले आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने कोई भी फंक्शंस जो है वो यूज कर सकते हो। आपने किसी लेटर को लोअर केस में करना है, आपने किसी को अपर केस में करना है, ये हमारा होता है लेफ्ट साइड से आपका जैसे दिखाया हमारा भाई इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस आपका एक स्ट्रिंग है, उसमें से आपने 3 कैरेक्टर जो है वो आपके लेने हैं। 3 कैरेक्टर लेफ्ट से लेने हैं, लेफ्ट से लेने तो लेफ्ट साइड से 3 कैरेक्टर आपको दे देगा। यदि आप चाहते हो कि आपको राइट से चाहिए है तो ये राइट से आपका ये 3 कैरेक्टर आपको देगा CES। देन वी हैव मिड, मिड आप बात करोगे तो जो मैंने लिया है मैंने मांगा यहाँ से 3 4। 3 4 का मतलब है कि यहाँ से ये छोड़ के तीसरे से शुरू करेगा और 4 दे देगा। ये 4 कैरेक्टर मेरे यहाँ पे आपके डिस्प्ले होंगे। इसके बाद हमारा सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग के अंदर भी हमारा वही रिजल्ट रहेगा। देन वी हैव ट्रिम, ट्रिम में हमारे पास एक लेफ्ट ट्रिम होता है, एक हमारा राइट ट्रिम होता है। ये हमारा क्या करेगा, लेफ्ट ट्रिम यदि आप देखोगे तो सपोज मेरे पास यहाँ पे है आपका सेलेक्ट ट्रिम और मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लिया आपका इंफॉर्मेटिक्स ले रहा हूं और यहाँ पे मैंने स्पेस आपका दिया हुआ है। यदि मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा तो ये दोनों साइड का जो स्पेस है वो आपका खत्म कर देगा, खत्म करेगा। यदि मैं इसी के अंदर यहां करता हूं सेलेक्ट आर ट्रिम, आर ट्रिम का मतलब है कि जो राइट साइड का स्पेस है सिर्फ उसको दूर करेगा, बट लेफ्ट साइड का जो स्पेस है वो आपका यूं का यूं रहेगा। तो यहाँ आपका जो ये साइड है लेफ्ट साइड का स्पेस आपका रहा है, बट इस साइड का स्पेस राइट का खत्म कर दिया है। इस तरीके से हम लेफ्ट और राइट ट्रिम को यूज कर सकते हैं। देन वी हैव डिफरेंट फंक्शंस वेयर वी हैव यूज्ड एसक्यूएल क्लासेस, वेयर हमने यूज कर दिया है, डिस्टिंक्ट मैंने यूज कर दिया है। इसके बाद हमारा आता है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय का मतलब क्या है कि मेरे पास कोई भी एक टेबल है, सपोज करो कि यहाँ पे मेरी टेबल है एक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डॉक्टर, तो यहाँ पे मेरी टेबल डिस्प्ले हो गई और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मेरे को काउंट करने हैं या मेरे को इनको अरेंज करना है। अरेंज मान लो मैं चाहता हूं कि इन सभी को एक एक्सपीरियंस के उस पर सॉर्ट कर दे, सॉर्टिंग कर दे, तो मैं यहाँ लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डॉक्टर ऑर्डर बाय एक्सपीरियंस। यदि आप यहाँ पे इसका जो ऑर्डर का ऑर्डर आपने सेट नहीं करोगे, यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग 2 ऑर्डर हो सकते हैं। यदि आपने ऑर्डर को सेट नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर आपको देगा। अब यहाँ पे देखोगे तो मेरा असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे आ गया है। यदि मैं चाहता हूं कि इनको मेरे को असेंडिंग नहीं मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए होता है, तो यहाँ पे जहां मैंने ऑर्डर बाय एक्सपीरियंस लिखा है उसके बाद लिख दूंगा DESC। DESC मतलब डिसेंडिंग, इसको आप डिस्क्राइब में भी यूज करते हैं। तो ये मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हमारा ग्रुप बाय। ग्रुप बाय में क्या होता है, मान लो मैं चाहता हूं कि मेरे को यहाँ पे काउंट करना है। अब यदि मैं यहाँ पे काउंट करता हूं अपने रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पे मैं जब देखूंगा तो मेरे जो सारे रिकॉर्ड है वो यहाँ पे हमारे काउंट हो जाएंगे, यानी कि 11 रिकॉर्ड मेरा यहाँ पे है। बट मैं चाहता हूं कि मेरे को काउंट तो करने हैं, लेकिन काउंट करने हैं मेरे को डिपार्टमेंट को।
और डिपार्टमेंट को भी काउंट करना है भाई, मेडिसिन में कितने हैं, ऑर्थोपेडिक में कितने हैं, स्किन में कितने हैं। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा सेलेक्ट काउंट डिपार्टमेंट फ्रॉम डॉक्टर, यहाँ पे लिखूंगा मैं ग्रुप बाय, ग्रुप बाय क्या, जो मेरा डिपार्टमेंट है, और उसके बाद मैं इसको सेमीकोलन लगा दूंगा। तो मेरे को दिखाएगा कि यहाँ पे जो मेरे काउंट है वो 3 3 1 2 2 है। इसको मैं और थोड़ा रेक्टिफाई कर दूं। मान लो मैं चाहता हूं कि मेरे को यहाँ देखना है कि डिपार्टमेंट का नाम भी देखना है और इसके बाद उनकी काउंटिंग भी देखनी है। तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट कोमा काउंट डिपार्टमेंट फ्रॉम डॉक्टर, और इसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मेरे को जो है ग्रुप बाय डिपार्टमेंट कर दे। तो मेरे को दिखाएगा कि जो ENT डिपार्टमेंट है उसकी काउंटिंग 3 है, ऑर्थोपेडिक की भी 3 है, कार्डियोलॉजी की है, स्किन का 2 है और मेडिसिन का 2 है। अब इसी तरीके से हम और आगे बढ़ेंगे। हैविंग क्लास, हैविंग और वेयर दोनों क्लास आपके यहाँ पे आते हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है। वेयर क्लास जो आपका काम करेगा वो करेगा हमारे पूरी टेबल के ऊपर, बट जो हैविंग है दैट वर्क ऑन ग्रुप ओनली। इफ वेयर एंड हैविंग बोथ आर यूज्ड देन वेयर विल बी एग्जीक्यूट। ध्यान रखिए बेटा कि जो हमारा वेयर क्लास है वो हमारी पूरी टेबल पे काम करता है, जबकि हैविंग जो है वो आपके ग्रुप पे काम करेगा। और यदि आपने एक ही टेबल में ग्रुप वेयर और हैविंग दोनों यूज किया है तो हमारा वेयर एग्जीक्यूट होगा, हैविंग आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। देन वी हैव सम एग्रीगेट फंक्शंस, और एग्रीगेट फंक्शन में मैंने काउंट आपको बता दिया है। सम मैं आपको एक बार दिखा रहा हूं, जैसे मेरी टेबल है ये आपकी डॉक्टर वाली ही, उसके ऊपर ही मैं आपका लगा के दिखा रहा हूं। वी हैव short of time, select star from, thanks नवीन जी, you are giving so much time, select star from doctor। अब मेरे पास यहाँ ये टेबल थी, इस टेबल में मेरे पास एक्सपीरियंस है। मान लो मैं चाहता हूँ कि इनका सम लेना मेरे को एक्सपीरियंस का, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सीधा सेलेक्ट सम, इसका सम एक्सपीरियंस का फ्रॉम डॉक्टर। तो मेरे को इनका जो सम है, सॉरी स्पेलिंग गलती होगी मेरी थोड़ी, EXPERIE IENCE एक्सपीरियंस फ्रॉम डॉक्टर। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस मेरा जो टोटल है वो सम है। यदि मैं चाहता हूँ कि मेरे को एक्सपीरियंस जो है उसका मैक्सिमम देखना है, मैक्सिमम एक्सपीरियंस कितना है, तो मैं लिखूंगा सीधा मैक्स, और इसके बाद मैं इसको एंटर प्रेस कर दूंगा तो मैक्स दिखा देगा। यदि मेरे को मीन देखना है तो मैं यहाँ पे मीन आपका यूज कर सकता हूं, मीन लूंगा और इसके बाद मीन पे मैं क्लिक कर, ये मेरा मीन आ जाएगा। और यदि मेरे को एवरेज चाहिए है तो आई विल जस्ट चेंज फ्रॉम मीन टू एवरेज ABG, देन आई विल जस्ट राइट डाउन द सेम। तो ये मेरा यहाँ पे रहेगा। इसके बाद यदि हम थोड़ा आगे और मूव करें तो फिर मेरे यहाँ पे आते हैं हैंडलिंग टू टेबल क्वेरी, ज्वाइन क्वेरी। ज्वाइन क्वेरी में क्या होता है, access the information from two or more table which require the joining of two or more table, such query is called join query। नाम से स्पष्ट, अभी हमारी वो सभी क्वेरी जिसमें हम किन्हीं भी दो टेबल्स को ज्वाइन करेंगे उनको बोलेंगे हम ज्वाइन क्वेरी। और इसके अंदर हमारी एक तो होती है क्रॉस ज्वाइन, एक होती है हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको हम क्रॉस ज्वाइन जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, फिर हमारा इको ज्वाइन है, नॉन इको ज्वाइन है और नेचुरल ज्वाइन है। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने दिए हैं। जैसे क्रॉस ज्वाइन में क्या होता है, क्रॉस ज्वाइन के अंदर जो आपके कॉलम होते हैं वो आपके प्लस हो जाएंगे और रो आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आपने ध्यान रखना है। सपोज मेरे पास एक सप्लायर टेबल थी और एक आइटम टेबल थी। Would you like to explain our learners what is basically the meaning of double entry system? Hello viewers, double entry system is the most